You remember the Last Supper, जो आखिरी भोजन हुआ था, everybody's feet were dirty with walking on the dirty road. सबका जो पांव था वह मैला से भरा हुआ था. The bucket of water is there, towel is there. वहां पे बकेट है और वहां पे टॉवल भी है. Who's going to wash the feet? और कौन उनका पांव धोने वाला है? Matthew is chartered accountant, he doesn't wash feet. मत्ती जो था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो कैसे पांव धो सकते हैं? John is a relative of the high priest, he will not wash feet. यूहन्ना जो है वो तो हाई प्रीस्ट का एकदम रिलेटिव है. Peter says, I'm already the leader, I'm not going to wash the feet. वो पतरस बोलता है मैं तो बड़ा सबसे प्रमुख हूँ, मैं कैसे पांव धो सकता हूँ? Judas Iscariot says, I'm the only postgraduate in this disciples, I won't wash anybody's feet. और यूदस बोलता है मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं कैसे धो सकता हूँ? So who's left? तो कोई रहा ही नहीं ये काम करने के लिए. Jesus says, I am the servant here. यीशु बोलता है मैं ही वही दास हूँ. The last day of his life, उनके जीवन का आखिरी दिन he takes the bucket and water and goes one by one and washes the feet. वह बकेट में पानी लेके सबके सामने एक एक करके जाता A है. job done not by a servant but by a slave. ये काम जो एक सर्वेंट नहीं परंतु एक दास करता है. That's what Jesus did. वही प्रभु ने किया. He showed us the glory of submission. उन्होंने वो महिमा दिखाया जो अधीनता का है, Till today the world does not know. जो आज भी इस दुनिया ने नहीं समझा है. When he tried to make him a king, he ran away. जब उनको राजा बनाने का प्रयास किया तो वे भाग निकले. He never took a title. उन्होंने कभी भी एक पदवी नहीं चाहिए. You know what title he had? उनका जो पदवी था क्या है मालूम है? Son of man. मनुष्य का पुत्र. I asked the Lord, I said, Lord, what does this son of man mean? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये मनुष्य का पुत्र का क्या मतलब है? This is the revelation the Lord gave me. ये ही प्रकटीकरण प्रभु ने मुझे दिया. I am the son, I am an ordinary man. मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ. Son of an ordinary man. मैं एक I am an ordinary man. मैं एक साधारण सा मनुष्य He हूँ. was not born of human beings. मैं He was मनुष्य not born of a father, earthly father. मैं इस धरती के एक पिता के द्वारा नहीं बना हूँ. But he lived on earth as an ordinary man. परंतु वह इस धरती पर रहा एक साधारण सा मनुष्य का रूप लेके. He was not Reverend Dr. Jesus. वह रेवरेंड डॉक्टर जीसस नहीं थे वे. He was not Pastor Jesus. वह पास्टर जीसस नहीं थे. These are all foolish people who take these titles today. ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसी पदवी चाहते हैं. He was not even Father Jesus. वह फादर जीसस भी नहीं थे. He was Son of Man. वह एक Ordinary मनुष्य का man. पुत्र. You know, I have never forgotten that. ये मैं कभी नहीं भूला. I said, Lord, you are Almighty God. मैं बोला प्रभु तू सबसे सर्वश्रेष्ठ है. And you lived on earth as an ordinary man. और तूने इस धरती पर एक साधारण सा मनुष्य की रीति में जिया. Help me to live all my life as an ordinary man. प्रभु मुझे मदद की कि मैं भी एक साधारण सा मनुष्य की रीति में मैं जीऊं. Not only never taking a title, कभी भी अपने पदवी ना लेते हुए ही नहीं. never expecting any respect from anybody. कभी भी ऐसा ना चाहूं कि लोग मेरा आदर करें. Not at all. कभी भी नहीं. Not even respect for my age. मेरे आयु के लिए भी कभी मैं आदर न चाहूं. Because I follow one who was Almighty God who lived as an ordinary man on this earth. क्योंकि मैं उसका पीछा करता हूं जो सबसे सरल रीति से इस धरती पर जिया. Now in a home, एक घर में who can show this glory of submission? और यह जो अधीनता का जो स्वरूप है वो कौन दिखा सकता है एक घर में? It doesn't say husbands submit to your wives. वहां घर पे ऐसा नहीं बोला कि पति अपने पत्नियों का अधीन रहो. Wives submit to your husbands. परंतु पत्नियां अपने पति का अधीन रहें. Who is going to show the glory of submission in a home? तो ये जो महिमा है वो कौन दिखा सकता है? The one which Jesus showed. जो प्रभु ने दिखाया हमको. The wife. वह केवल स्त्री है. By her spirit. उसके रीति से. That brings the spirit of Christ into that home. वह परमेश्वर की आत्मा उस घर में लेके आता है. Then the children learn that spirit and learn to submit to their parents. और यह देखकर उनके बच्चे भी वही आत्मा पाते हैं और अपने माता पिता का अधीन रहते हैं. So who is building that home? तो ये घर को कौन बना रहा है? The woman. स्त्री ही बना रही है. The wise woman. वह बुद्धिमान Who has स्त्री learned from Jesus the glory of submission. जिसने सीखा है वह महिमा जो अधीनता से आता है. No, submission is not slavery. अधीनता जो है वो गुलाम रहना नहीं है. It's not when one says, "Oh, I'm scared to tell my husband anything." No. वह ऐसा नहीं कि मैं घबराई हूँ, डरी हूँ कि मैं पति से कुछ बोल पाऊं. Some black coal mark is on her husband's face. उसके पति के मुंह पर एक काला ऐसे मार्क है.
And she's afraid to tell him when he goes to work. और उसको बोलने के लिए डर है, वो काम को जा रहे हैं। That's not a good wife. ये सही स्त्री नहीं है। You have to say, darling, there's a black mark on your face. Take it away. उनको अच्छी रीति से, प्रियतम आपके गाल पर एक काला चिन्ह है, उसे मिटाइए। That is a helper. वही एक सहायक है। You haven't combed your hair properly. आपने आपका कंघी बराबर नहीं किया। There's so many ways a woman can be a helper. ऐसे कई चीजों में एक स्त्री एक सहायक बन सकती है। Or if he spoke rudely to somebody who came to the door, और उसके आपके पति ने कोई दरवाजे पे आया, उसके साथ एक गुस्से से बात किया, say, darling, it's better to speak a little gently. प्रियतम जरा अच्छी रीति से उनसे साथ क्यों नहीं बात कर सकते? Not why in the world did you speak so harsh to that? Not like that. ऐसा नहीं बोलना है कि क्यों आपने ऐसे गुस्से से बात किया। To be a helper in a spirit of submission. एक सहायक, एक अधीनता के आत्मा के साथ। And your children will learn from that. और आपके बच्चे भी वहां से सीखेंगे। Whenever I see rebellious children in a home, जब भी मैं एक बलवा करने वाले बच्चों को देखती हूँ, I ask the mother, तब मैं उनके माँ से बात करती हूँ, do you think they learned that from you? क्या उन्होंने आपसे सीखा है ये चीज? They saw how you talk to your husband and they decided to talk to you like that. उन्होंने देखा कि आप अपने पति के साथ इस प्रकार से बात करते हो, इसलिए उन्होंने सीखा। That is a foolish woman who's destroying her home. ये वही बुद्धिहीन स्त्री है जो अपने घर को नाश कर रही है। So I want to say to all of you sisters, इसलिए मैं सारे बहनों को ये बताना चाहता हूँ, married sisters, सारे विवाहित बहनों से बात करना you चाहता have हूँ। a great ministry आपको एक बहुत ही बड़ा सेवकाई है in the new covenant. इस नए करार में, Fulfill it. उसको पूरा You कीजिए। can build your home आप आपके घराने को बना सकते हो and you can show your daughters the right way. और आपके बच्चियों को दिखा सकते हो वो सही मार्ग। A word to young sisters. मैं सारे जवान बहनों को बताना चाहता हूँ। My wife said about ornaments. My wife spoke about jewelry. मेरी पत्नी ने ज्वेलरी के बारे में बताया। This is an individual personal thing. ये- Each person must decide. ये जो चीज है हर एक के खुद का एक निर्णय लेने वाली चीज है। Because the Bible says don't decorate yourselves. बाइबल बताता है कि अपने आप को ऐसे तो- श्रृंगार मत करो। It says whatever you do for the glory of God. आप जो भी करते हो प्रभु के महिमा के लिए कीजिए। I remember one sister, young sister came and said to me, मुझे याद है एक जवान सिस्टर मेरे पास आकर इस प्रकार से बोली, Brother Zach, ब्रदर जैक, do you think God looks at whether I'm wearing jewelry or not? आप जानते हो क्या प्रभु मैं जो पहन रहा हूँ वो सब जानता है क्या? She taught me. उन्होंने ये बताया। Man looks on the outward appearance, but God looks at the heart. उन्होंने बोला कि मनुष्य बाहरी रूप से देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। You look at the jewelry, God looks at my heart. आप मेरा केवल गहने को देख रहा है परंतु प्रभु मेरे हृदय को देख रहा है। I said, sister, I agree with you 100%. मैंने बोला मैं 100% आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर सहमत हूँ। The Bible says whatever you do for the glory of God. बाइबल बताता है कि जो कुछ करोगे वो प्रभु के महिमा के लिए करो। 1 Corinthians 10:31. 1 कोरिन्थी 10 का 31. So God is looking at your heart. प्रभु आपके हृदय को देख रहा है Why you are wearing the jewelry? कि आप किस लिए वो गहना पहन रहे हो। Is it for the glory of God? क्या वो Or to show other people? क्या वो प्रभु के महिमा के लिए है कि दूसरों को दिखाने के लिए है। You are absolutely right. God looks at your heart. आप बराबर बोल रहे हो कि प्रभु हमारे हृदय को ही देखता है। You answer to God. आप प्रभु को ही उत्तर दीजिए। We've never made a law on this in our house, in our church. इसलिए हमने हमारे कलीसिया में ये कभी भी एक नियम के रूप में नहीं किया। Because I believe whatever you force people to do has no value. क्योंकि जो भी चीज हम जबरदस्ती करके किसी के ऊपर दबाव डालते हैं वो कभी भी सही नहीं होता। God loves a cheerful giver. प्रभु हमेशा खुश से देने वाले पे ही प्रसन्न होते हैं। You know, when we started our church, my wife was the only one without jewelry. Some of the other sisters, they all wore jewelry. हमारे कलीसिया में शुरुआत में कई लोग थे परंतु अभी केवल मेरी पत्नी है जो गहने नहीं पहनते, बाकी कई लोग पहनते And I हैं। told all the husbands there, please don't force your wives to take off the jewelry. Don't do that. मैंने सारे भाइयों को बोला कि आप अपने पत्नियों को कुछ भी जबरदस्ती मत करो कि गहने Because निकालने God को, loves only cheerful givers. Anything forced has got no value. क्योंकि प्रभु चाहता है खुशी से करे करने वाले, बाकी कोई रीति नहीं। That is as foolish as those other preachers who force people to pay a tithe. वह उसी रीति से वैसे है जैसे प्रचारक प्रचार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं पैसे देने के लिए। So I never preached on it.
इसलिए मैंने इसके ऊपर कभी प्रचार नहीं किया। I mean, we'd read the verse and say, what was there? और जो वचन में लिखा है वो पढ़ के मैं बताता हूँ। One day, एक दिन I saw one sister had taken off her jewelry. मैंने देखा कि एक बहन ने वो गहने निकाल दिए। I said, what happened, sister? I never spoke on this. मैंने बोला मैंने कुछ तो इसके बारे में बोला नहीं। So she said, brother, you were speaking about the coming of the Lord. बहन ने बोला कि मैंने सुना कि आप प्रभु के आने के बारे में बता रहे हो। That when the Lord comes, don't make sure you don't have anything heavy that makes you lie down here and you're not taken up. जब प्रभु आएंगे तो बहुत गहनों से भारी रहे तो मैं ऊपर नहीं जा I पाऊंगा। wasn't talking about jewelry. I thought any weight that keeps you down. वो गहनों के भार के कारण मैं रह जाऊंगी और मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगी। That's what she thought. She took it, oh, these things make hold me down. I better go. तो उनको लगा कि वो भार के कारण मैं प्रभु की ओर उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने सारे गहने निकाल I दिए। was not even talking about that. मैं उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा था। She took it like that. God bless her. उन्होंने उस रीति से लिया और प्रभु उसको आशीषित करे उनको। One last thing. एक आखिरी चीज, A sister, once young sister came to me and said, how should I dress? और एक जवान बहन आई मेरे पास, We बोले always say you must be modestly dressed as young sisters. किस प्रकार से हमें वस्त्र धारण करना है कि मॉडस्ट रीति में। So I said, I'm not going to tell you so many, your skirt must be so many centimeters. मैंने यह निर्णय किया कि आपको मैं लंबाई नहीं बताऊंगा, इतना सेंटीमीटर होना चाहिए आपका स्कर्ट का। I'm not a tailor, I'm a servant of God. मैं टेलर नहीं हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। I'm not going to tell you how long your sleeve should be of your blouse. मैं नहीं बता सकता कि आपके ब्लाउज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, Or how much of your midriff you should show underneath your blouse. और ब्लाउज के नीचे आपका जो कमर है वो कितना होना चाहिए, वो मैं नहीं बता सकता। I don't look at those things and I'm not interested. मैं उन चीजों को देखता भी नहीं हूँ और उसके ऊपर मेरे I कोई don't, रुचि and I नहीं don't है। judge people also. मैं किसी का न्याय भी नहीं करता हूँ, I say only this. मैं केवल एक ही चीज बोलता That's हूँ। what I told her. वही मैंने बोला, If Jesus Christ were living in the next street, अगर प्रभु यीशु आपके नजदीक में रहते हो, say you were living in Nazareth and he was in the next street. आप नाजिद में रहते हो और आपके बाजू में प्रभु यीशु रहते And हैं, one day he told you, I want you to come for a walk with me in the market. और वे आकर आपको बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर इस रास्ते से चल के जाएंगे। How would you dress to walk with Jesus so that he can be proud of you and say, this is my sister? आप किस रीति से वस्त्र धारण करोगे कि प्रभु खुद खुश होंगे और खुशी के साथ आपके साथ चल पाएंगे। Dress like that when you walk the streets of Bangalore or Bombay or go to college or anywhere. उसी रीति से आप भी वस्त्र धारण कीजिए जैसे आप वो प्रभु यीशु के साथ जाओगे। That's all. वही काफी है। No length of centimeters or any such thing. कोई भी ऐसे लंबाई कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। Ask yourself when you look into the mirror, आप अपने आप को पूछिए जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, can I walk with Jesus with this dress? क्या मैं प्रभु के साथ इस वस्त्र में चल सकती हूँ? Not क्या only on Sunday when you go to church meeting. केवल कलीसिया पे जानते वक्त संडे को उसी दिन नहीं, You need Jesus more when you go to work. आपको जरूरत है प्रभु यीशु की जब आप काम को जाते हो। Will he walk with you क्या उस समय प्रभु आपके साथ चलेंगे? in the way you are dressed? जिस रीति से में आप वस्त्र धारण किया है, The provocative way you provoke other young men to lust? आप जिस रीति से वस्त्र धारण करके लोगों का इच्छाएं पैदा करते हो, He will walk away from you. आपसे वह प्रभु दूर हट जाएगा। You want the Lord to be away from you when you go to work? आप जब काम को जाओगे प्रभु आपसे दूर निकल जाएगा तो This is a scary world for young girls if you have Jesus is not with you. अगर प्रभु आपके साथ नहीं है तो सबसे भयानक चीज है अकेले जाना। That's all I have to say. यही मुझे आप लोगों से बोलना है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हमारे अच्छे पिता, help us to remember these things प्रभु इन चीजों को याद रखने के लिए हमें मदद कीजिए that we can glorify you. ताकि आपकी महिमा हम कर पाए। In Jesus' name, प्रभु यीशु के नाम में Amen. आमीन।